Hello. Good morning, ma'am. Morning. And after so long, after summer vacation, this is the first class in class 10 C and D. But in spite of that, only 7 students have joined. देखती हूँ तुम लोग तो अपने हिसाब से ज्वाइन करते हो ना. इफ यू विश टू ज्वाइन यू विल ज्वाइन, अदरवाइज नो. Which lesson we had to start today? I have the book First Flight. कहां से पढ़ना है? I think we have completed up to the black aeroplane. The wild animals also over. From the diary of the young girl, is there in your syllabus or not? Hello? Aditya? Yes, ma'am. Am I audible to you all? Yes, ma'am. जब सुनाई दे रहा है तो जवाब दो. Yes, ma'am. सत्यम. सत्यम. Yes, ma'am. तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? म्यूट करो अपने आप को. ये 6C से कौन ज्वाइन कर रहा है? धीरज कुमार राणा. चलो. So let's continue. I think it is there in your book from the diary of Annie Frank. I think ball poem is left. बॉल हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? Yes, ma'am. हाँ, बॉल बाकी है. तो हम लोग आज पढ़ लेते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बिकॉज while poem I think I will teach you in the class so that you will be able to understand it in a better way. और कहानी है तो कहानी तो समझ ही लोगे, उसमें थोड़े से फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे और बाकी चीजें होंगी. तो हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं पहले. It is written by Annie Frank. चलो देखो. Before you read Anneliese Marie, Annie Frank, 12th June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote violin hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. This is the story of a girl जो इसका नाम एनी फ्रैंक था, और ये एम्स्टरडम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो उस समय ये किस तरह से उन लोगों से बच बचा के, इसकी पूरी फैमिली रहती थी एक जगह से दूसरे जगह, ये लोग मूव करते रहते थे. और चूंकि वो बचे रहे, क्योंकि बचना जरूरी था. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. तुमने सुना होगा इन जर्मनी नाजीज जो थे उन्होंने पावर हासिल कर लिया, यानी सत्ता उन्हें मिल गई थी. एंड दे डू अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश whatever they wish to do with the people of other caste or creed or religion. तो उनके साथ वो अपने हिसाब से व्यवहार करते थे. As persecution against the Jewish population increased, नाजीज को इस बात की परेशानी थी कि ये जो जिविश पॉपुलेशन है, दे आर इंक्रीजिंग फास्टली और एट अ हायर रेट. तो वो चाहते थे
कि इन्हें किसी भी तरह कम कर दिया जाए. After 2 years, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. ये सारे लोग, इनकी पूरी फैमिली, इनके फादर की जो ऑफिस थी उसमें जाके और एक जगह पे ये लोग शरण लिए हुए थे, यानी उसी ऑफिस के बिल्डिंग में ये लोग रह रहे थे. The group was betrayed and transferred after 2 years in hiding. The group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group. उसके बाद वहां पे जब ये लोग भाग के कहीं और गए तो एनी जो थी वो मर गई थी टाइफस से बर्जन बेल्सन में, और ये within days of her sister Margot Frank and her father Otto was her father, the only survivor of the group. सिर्फ यही 2-3 लोग बचे हुए थे पूरी फैमिली में से. Margot Frank, the only returned to Amsterdam after the war ended. जब वार खत्म हो गई तो ये लोग वापस से एम्स्टरडम में आ गए. To find her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have published in English under the name The Diary of a Young Girl. ये एक नॉवेल भी है जो पहले क्लास 10th में चलता था. 2 नॉवेल चलते थे, एक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और एक हेलेन केलर का. तो ये इसने जो भी इंसिडेंट्स इसके साथ हुए वो सब कुछ इसने अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया हुआ था एनी ने. तो उसी डायरी को ढूंढने के लिए जब ये वापस एम्स्टरडम आए आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ वॉर, तब ये खोजने लगी कि उसे मिल जाए, तो सो दैट शी वुड बी एबल टू थिंक और शी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर under what circumstances she and her family had gone through during the World War. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday. देखो यहाँ पे एक फोटो है. This is a photo and would wish myself a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. और एनी फ्रैंक का लिखा हुआ है. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1942. इसे डायरी दी गई थी 1942 में और इसने 12 जून से सारी चीजें उसमें लिखना शुरू कर दिया. हर एज वॉज 13 बिकॉज 13वें बर्थडे पे उसे वो डायरी दी गई थी. तो उसमें उसने अपने डेट वाइज जो कुछ भी उसको हुआ उसके साथ होता था उसे वो मेंशन करती रही. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. और इसे ट्रांसलेट किया गया डच से और सारे लैंग्वेजेस में, और ये बहुत ही वाइडली नोन बुक्स रहा एनी फ्रैंक का ये डायरी भी. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary, described as the work of a mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. देखो, एनी फ्रैंक जो थी
शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, तो 13 साल में उसने लिखा था, और सब कोई सोचता था कि एक छोटी सी उम्र की राइटिंग्स को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाए, बट हर राइटिंग्स, जो भी उसकी डायरी थी, इट वाज वाइडली नोन अबाउट, एंड पीपल आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग हर डायरी, और वो एक अच्छा नॉवेल के रूप में लोगों के सामने आया। उस पर बहुत सारे फिल्म्स बने, ओपेरा में उसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया, और बहुत सारी थिएटर्स में भी उसको उसके बारे में बताया गया। तो लोगों को ये लगने लगा कि उम्र भले ही छोटी हो, बट हर राइटिंग्स वर मैच्योर एंड फुल ऑफ insights. Insights means what? What is the meaning of insight? Insight means अंतर्सूझ, जिसके लिए हम खुद से कुछ डिसीजन लेते हैं या कुछ सोचते हैं, दैट इज नोन एज इंसाइट। तो इसके राइटिंग्स, इसकी डायरी को बहुत पसंद किया गया और लोग उसे पढ़ने लगे। ये देखो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड एक लाइन इसमें है, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। ये अपने समय की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और होलोकॉस्ट विक्टिम मीन्स उस समय जो परिस्थितियां थी, जो परेशानियां थी, उनसे ये और भी ज्यादा फेमस हो गई। और जब दुख या तकलीफ की बातें कहीं लिखी रहती है या किसी कहानी में तुम देखते हो, तो उसे पढ़ने में हमें और भी अच्छा लगता है। In the same way, she was popular for her diary. देखो, journal, do you keep a diary? Given below under A are some terms we use to describe a written record of personal experience. Can you match them with their descriptions under B? Journal किसे कहेंगे? पहला इसमें है जॉरल, सॉरी जॉरल, जर्नल, ये मिसप्रिंट है। A written record of events, मिला लो अपने बुक में, if you have book, match it with pencil in your book only. A written record of events with times and dates, usually official. Diary, a book with a separate space or page for each day, in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day. हम डायरी, हम सभी को लिखना चाहिए। इट इज अ गुड थिंग टू डू इन आवर लाइफ। वॉट एवर हैपेंड, हाउ यू स्पेंड अ डे, इफ यू आर राइटिंग इट इन टू डायरी, एंड आफ्टर समटाइम्स व्हेन यू विल ग्रो अप, व्हेन यू विल गेट मैरिड, और तब तुम उसे पढ़ते हो या अपने बच्चों को दिखाते हो कि आई यूज्ड टू राइट अ डायरी व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड, और तुम्हें उन अनुभवों को, उन एक्सपीरियंस को, उन बातों को पढ़ के अपने आप में बहुत मजा आएगा और खुशी हो। मैं बार बार कहती हूँ क्लास में कि ट्राई टू राइट अ डायरी ऑफ योर्स, लेकिन कोई नहीं लिखता, आई नो दैट। लिखने की कोशिश करनी चाहिए। लॉग, अ फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नी, a period of time or an event written every day. log book उसे कहते हैं जिसमें तुम हर दिन अपने विषय में कहाँ जाना है, कितना समय बिताना है वहां पे, और क्या आज इवेंट होने वाले हैं वो हम मेंशन करते हैं। memoirs, a record of person's own life and experiences, usually a famous person. चलो अब हम लोग चलें कहानी की ओर। कहानी क्या कहती है वो देखें। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. उसे लगता था कि ना तो वो कभी उसने डायरी लिखी थी और ना ही कभी उसने सोचा था, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो डायरी लिखे, क्योंकि वो जानती थी कि एक 13 साल की लड़की का लिखा हुआ डायरी
ना तो वो खुद पढ़ेगी और ना ही कोई और उसके इस तरह की बातों को पढ़ने की कोशिश करेगा। Musings, you can say thinking of the 13-year-old girl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि it is not a big deal. If I used to write a diary, I would be able to throw off my own worries, my own anxiety, which are there in my mind. Clear to all of you? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. बेटा ये हेलो क्लास 10D और C दोनों ऑफलाइन भी मैं ही पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन भी मेरे ही पास है। एंड इन स्पाइट ऑफ 2 classes, only 14 students have joined. Do you think it is a nice strength? And the lesson which I am teaching, I will not repeat it. क्यों नहीं ज्वाइन करो? If there is proper reason for not joining the class, I will do something in the class also. But I don't know why you people are not joining. आज मैं देखती हूँ मेरे मॉनिटर्स भी नहीं है इसमें, नितिन भी नहीं है, सत्यम है या नहीं है वो भी नहीं हो। आज इतने दिन बाद अगर इंग्लिश का क्लास है सत्यम, क्यों इतने कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? और 10C का मॉनिटर अंकित, थोड़ा सा उनको बोलो ज्वाइन करने कल से, क्योंकि अभी मैं 11 में क्लास लेके आ रही हूँ, नए बच्चे हैं, फिर भी वहां पे 28 स्ट्रेंथ था, जबकि तुम्हारे से कम उनका स्ट्रेंथ है और तुम लोग इतने सारे हो, एटलीस्ट कम से कम 30-40 तो ज्वाइन करो। चलो मुझे क्या है, मैं अपना काम कर रही हूँ पढ़ाने का। इफ यू अंडरस्टूड इट्स ओके, इफ यू आर नॉट ready to know, ready to understand, then also it's okay. I have to do my work. Paper has more patience than people. Pay attention on the words written here. Annie Frank कहती है कि paper has more patience than people. Do you agree with that? How paper has more patience than people? कैसे? बोलो। किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये बात? सत्यम, yes, अभी ma'am. तो तू बोल, हाँ तो बोलो ना, कैसे कह सकते हो कि पेपर में पेशेंस ज्यादा है rather than people? पहले तो ये बताओ कि इस बात से तुम लोग एग्री करते हो या नहीं? डू यू थिंक Yes, ma'am. रियली 100% यस? क्योंकि तुम देखोगे कि इफ यू हैव फ्रेंड, समटाइम्स you fight with him or her. We can write on the paper. हाँ आयुषी ने लिखा है, ठीक है आयुषी, and it is not going to reveal anyone. ये तुमने नहीं लिखा आयुषी। All our feelings, all our thinkings, all our emotions, we are able to pen down on the paper. And if certain things are secret, then paper is not going to reveal it to anyone. But if you don't have a true friend, or if you have friends and you are talking to them, sharing your views to them and sharing your inner feelings to them, then sometimes वो कहीं ना कहीं किसी को कुछ बता सकते। इस बात का डर, मान लो कभी तुम्हारी उनसे लड़ाई होगी तो तुम वो कहेंगे कि ये मैम के बारे में ऐसा बोल रहा था, मैं मैम को जरूर बता या दूंगी। बट इफ यू आर राइटिंग इन पेपर, पेपर कभी किसी को नहीं बताएगा। तो इसलिए वो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल।
आयुषी टेक द अटेंडेंस। और सुशांत है, सुशांत ही लेता था अटेंडेंस, वो नहीं है तो आयुषी ले लेगी। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये ऐसा इसलिए कह रही है कि एक दिन ये बहुत उदास थी और अपने हाथों पे अपने चिन को रख के चुपचाप घर पे बैठी थी, एकदम डिप्रेस्ड सी, एंड शी वॉज लिस्टलेस, मीन्स बिल्कुल निर्जीव सा, उसमें ऐसा लग रहा था कि उसमें जीवन नहीं। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि क्या मैं घर के अंदर रहूं या कहीं बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, नाल कट जा रहा है बार बार। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. वो सोचती है कि हाँ, मुझे पता है कि कागज में लोगों से ज्यादा सहनशीलता होती है। Unless I should ever find a real friend, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इस डायरी में अपने सारे फीलिंग्स, अपने सारे इमोशंस, अपने सारे वरीज तब तक लिखती हूँ till the time I would be able to get a good friend, जब तक मेरी कोई दोस्त नहीं मिल। I find a real friend, it probably won't make a bit of difference, और इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in नहीं बने, तो she decided to keep the diary as her friend, her everything. तो उसने सोच लिया कि ठीक है, ये पता नहीं इसको क्या हुआ। हेलो, Yes, ma'am. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बीच में Yes, पता ma'am. नहीं नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। सुशांत है, ये शशांक है ना, जो अटेंडेंस लेता था, वो है कि नहीं है आज ग्रुप में? क्लास में अभी नहीं है। चलो देखो, होमवर्क इंग्लिश नोटबुक में ही बनाए हो ना? समर वेकेशन का होमवर्क कहाँ बनाए हो? इंग्लिश नोटबुक में या अलग बना लिया? मैंने कहा था इंग्लिश नोटबुक में बना लेना। ओके, घबराओ नहीं, मौसम करवट लेगा और जल्दी ही आना पड़ेगा। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. कोई उसकी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेले थी इस पूरी दुनिया में।
and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister. ये भी अकेली नहीं थी, बट कहते हैं ना कि circumstances are not always in your favor. इसके भी घर में फैमिली मेंबर्स थे, इसकी 16 साल की एक बहन थी, पेरेंट्स थे, but she lost them in Second World War II. And there are about 30 people I can call friends. 30 इसके दोस्त भी थे जिन्हें ये अपना फ्रेंड्स कह सकती. I have a family, loving aunts and a good home. इसके घर में इसके aunts भी थे और एक अच्छा सा घर भी था इसका. No one on the surface I seem to have everything. और हर किसी को ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिल जाता. Except my one true friend, all I think about when I am with friends is having a good time. इसकी एक दोस्त थी जिसे ये अपना ट्रू फ्रेंड कहती थी और इसे लगता था कि उसके साथ समय बिताना इसे बहुत मजा आता था. और all I think about when I am with friends is having a good time. उसे लगता था कि दोस्तों के साथ रहने से हम अच्छी तरह समय बिता लेते हैं. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. बल्कि ये लोग किसी पर्टिकुलर थिंग पे या किसी खास सब्जेक्ट मैटर पे बात नहीं करते, but they used to discuss everything which they were facing in day-to-day life. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. But both of them have maintained a proper distance between them. और कोई एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजर नहीं था, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं था. क्लोज इन द सेंस कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से चीजें शेयर नहीं करते, बस जो दैनिक एवरीडे लाइफ की जो बातें थी या जो कुछ ये लोग होता था इनके साथ वही बातें करते. This is why, and unfortunately, in any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. और उसके जीवन में ये सारी चीजें चल रही थी जो बदलने वाली नहीं थी. This is why I have started the diary. और इसी के कारण इसने डायरी लिखना शुरू किया. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. ध्यान से देखना यहाँ पे, वो कहती है कि I don't only want to jot down the things in the diary. Jot down means वो सिर्फ उसमें कुछ कुछ चीजें डाल के जमा करके नहीं रखना चाहती जैसा कि बाकी लोग करते हैं, बल्कि वो तो अपनी डायरी में पूरी दुनिया लिख देना चाहती थी. यानी जो भी उसके साथ होता था, जो उसके इनर सोल में चलता था और जो उसके साथ घटनाएं हो रही थी, everything she wanted to write in her diary, and she did it also. Here she gave her diary a person look as a friend. उसने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया था और अपनी सच्ची दोस्त को उसने एक नाम दिया था, एंड द नेम ऑफ द डायरी वाज किटी. तुम जब डायरी में डियर डायरी लिखते हो तो मैं अक्सर कहती हूँ कि डायरी के साथ डियर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि डायरी जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है एंड यू कैनॉट पर्सोनिफाइड इट. उसे तुम पर्सोनिफाई ऐसे नहीं कर सकते डियर लिख के, डियर डायरी. लेकिन यहाँ पे उसने डायरी को ही फ्रेंड लिख दिया है, डायरी को ही फ्रेंड मान लिया है और उसे एक नाम भी दे दिया है किटी. नेम हम किसको देते हैं? लिविंग बीइंग्स को. तो इसने तो उसे कह दिया है कि वही मेरी फ्रेंड है, जो डायरी है वही इसकी दोस्त. तो यहाँ वो किटी ही नाम से उसे संबोधित करती है और कई जगह उसने लिखा भी है कि डियर किटी. Now here are some questions. I'm going to ask what you understood, you have to give answer. What makes writing in a diary a strange experience for any friend? बोलो.
उसे लिखने का एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या था? It was because Annie had never written anything. हाँ, very good. आदित्य ने लिखा, nobody would care to read a thought of 13-year-old school girl. Good. Why does Annie want to keep a diary? बोलो. थोड़ी कोशिश करो. Why does Annie want to keep a diary? क्यों रखना चाहती थी वो एक diary? Because she had no true friends. Good. ठीक है. She has no true friends. Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? क्यों वो सोचती है कि वो डायरी में जो चीजें लिख रही है वो ज्यादा सेफ है rather than people? बताओ. If you have any answer, you can give. Because it has more patience, ठीक है, than people, and it is not going to reveal the secrets to anyone else. वो अपने सीक्रेट्स भी किसी जो तुमने उसमें लिखा वो किसी को वो बताने वाली नहीं है. ऐसी डायरी होती है. हैव यू अंडरस्टूड द लेसन? बाकी हम लोग कल ही पढ़ें. कहानी समझ में आई? और सैटरडे को मैं सोचती हूँ कि बॉल पोएम पढ़ा दूंगी. हाँ, ठीक है. ओके आदित्य. बट व्हाट अबाउट अदर्स हु आर नॉट ज्वाइनिंग? You just give them my message that ma'am is going to teach poem also in online classes, so join it properly. कुछ नहीं बोलेगी? क्या लिख रहा आदित्य? सॉरी गलती से सॉरी. Because she believes that paper has. हाँ, शशांक का भी जाग गया. Okay. So these 3 questions you are capable to answer because we had gone through these type of facts given here. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide brief sketch of my life, much as I dislike doing so. देखो, वो कहती है कि कोई भी बिना मेरे लाइफ का एक स्केच दिए हुए, बिना अपने लाइफ के बारे में बताए हुए अगर कोई खाली डायरी पढ़ेगा तो he or she will not be able to understand the facts which are mentioned there. So she decided to tell us about herself. उसने अपने जीवन का, अपने फैमिली मेंबर्स का एक ब्रीफ स्केच देने के लिए आगे लिखा है. और तब उसने वो डायरी में सारी बातें जो लिखती थी उसकी चर्चा भी उसने की है. If you have any queries, you